Welcome to day 8 out of 100 of Unscripted with DK Swami. Hi, I'm DK Swami. I'm a software engineer who's building an IoT startup and chasing a career in acting. तो आज हमने finally productive vlogs का season 2 start कर दिया. So I've been recording everything today and आज finally I got that feeling back, that feeling of a content creator, full-time content creator. And ये फीलिंग थी लास्ट टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग एट लर्नो एआई, अब से 1.5 साल पहले. एंड यस, आई वाज एट पीक ऑफ माय कंटेंट क्रिएशन जर्नी. बहुत कुछ हुआ उसके बाद, तब मैंने कंटेंट क्रिएट करना छोड़ दिया था एंड आई वेंट इनटू अ टोटली डिफरेंट डायरेक्शन. सो यस, ओके मैन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग. सो आज का दिन काफ़ी इंसाइटफुल था. आज मैंने फाइनली प्रोडक्टिव व्लॉग सीरीज़ का सीज़न 2 स्टार्ट कर दिया एंड आई रियलाइज वन थिंग कि आई बीन लाइंग टू माई सेल्फ. आई बीन गिविंग माई सेल्फ एक्सक्यूजेज टू एक्चुअली अवॉइड डूइंग द हार्ड थिंग्स. इवन दो आई वर्क ऑल द टाइम बट आई एम नॉट दैट एफिशिएंट जितना मेरे को होना चाहिए. हाँ, जब मैं खुद को सारे दिन रिकॉर्ड कर रहा था देन आई रियलाइज दैट कि I can be more efficient. Genuinely, there's a lot of things that I can do in an efficient manner and I can just preserve my energy instead of wasting at some places. I have to be more careful with my own time. और हम इंसानों के साथ यही प्रॉब्लम है. हम सोचते हैं we are doing the right thing but still we avoid the main thing that we need to do and just want to feel better about ourselves. आज मेरा मन नहीं है, थोड़ा ज़्यादा मन नहीं है रिकॉर्ड करने का because I've been recording myself for the whole day. I'm so tired of this content creation. I just want to work on technical things. आज भी मैं ढंग से टेक्निकल चीज़ों पर काम नहीं कर पाया. Even though I took interview of 3 people. No, तीसरे का नहीं हुआ था, बस 2 लोगों का ही हुआ. I've even recorded these 2 people. And जब मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा था पूरे दिन then I realized कि I can be more efficient. अगर मैं चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें और चेंज करूँ अपनी लाइफ में, जस्ट मेरी एफिशिएंसी लेवल 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. एंड ये चीज़ बिना रिकॉर्ड करे मेरे को क्यों नहीं समझ में आई थी अभी तक? बिकॉज दैट्स हाउ वी ह्यूमन्स आर. हम अपने आप को ही एक्सक्यूजेस देते हैं. मेरे केस में मैं खुद को क्या एक्सक्यूजेस देता हूँ कि यस, आई एम वर्किंग ऑन दिस स्टार्टअप थिंग, yes, I'm taking interviews, and yes, I'm doing this, that's why I'm not able to do this. But that's an excuse. Actually मैं उसके साथ में भी ये कर सकता हूँ अगर मैं अपनी एनर्जी को ढंग से मैनेज करूँ और खुद को उस पेन के थ्रू गो थ्रू करूँ. Just force myself into doing it, then I can do it. Like I did not record any audition or acting monologue or anything. I did not do anything on the acting side. I've been avoiding this acting side wali thing for a while. There was this course from Shikhar Theatre wala, अभी यहीं किटौनी में और था recently, but they cancelled it because of their own reasons. I even paid for it. अगर वो कोर्स कंटिन्यू होता तो एक कंसिस्टेंसी मैनेज होती मेरी एक्टिंग आर्ट फॉर्म को इम्प्रूव करने के लिए. And making these monologues and audition videos are quite crucial in growing this acting career, and I've been avoiding this. This is not good. I don't feel good because of that. Yes, even though I work at it and do all of this shit, when you avoid the work that you need to do, you just feel terrible about yourself. So that's the thing. I'm operating at almost 50 to 60% of my productivity. I really need to be more in self-control and more aggressive with my time. आज मैं फूफा जी का कॉल आया था and he wanted me to have a talk with my cousin, उनका जो लड़का है, and guide him into doing something. And I talked to him and वो उससे बात करने के बाद में I realized कि I was in his shoe बहुत टाइम पहले. तो उसका जो माइंडसेट है वही कि सो ही वांट्स टू जॉइन आर्मी बट ही इज़ नॉट पुटिंग इन रियल एफर्ट्स टू एक्चुअली अचीव इट. एंड ही वांट्स हिज पेरेंट्स टू बिलीव दैट
he wants to do this and he wants their time, energy and support and everything. But अगर उसे genuinely वो चीज़ अचीव करनी थी तो वो बिना उनके सपोर्ट के भी कर सकता है. एंड इवन दो दे आर सपोर्टिंग हिम बट ही इज स्टिल इनटू दैट ठीक है भाई हो जाएगा. इस तरीके से होता है, ये बचपना वाला फेज होता है व्हेन यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर ओन थिंग्स. जब तक आप खुद सीरियस नहीं होगे अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, हम दूसरों से सीरियसनेस की उम्मीद मत करो. यस, दैट्स वन लेसन. सो इट वाज अ गुड टॉक. एंड जस्ट वन मोर थिंग, I got this beautiful thing from Nannu yesterday. She also made this gift wale thing. She is a creative kid, okay, and that made me happy. तो कल और मेरे को लग जाएगा थोड़ा सा अपनी प्रोडक्टिविटी के पीक पे पहुंचने के लिए. फाइनली कल मैं ये सारा कंटेंट क्रिएशन वाले स्ट्रीमलाइन कर दूंगा एंड उसके बाद मैं इस रूटीन पे फोकस करने लग जाऊंगा. एंड डोंट फॉरगेट टू गो एंड वॉच प्रोडक्टिव व्लॉग सीजन 2. इट्स गोइंग टू बी इनक्रेडिबल. अभी आगे 18th को आई एम गोना हैव वन स्टार्टअप इवेंट. अभी मैं थोड़ा सा और सिस्टमाइज करूँगा ये अकाउंटेबिलिटी चेकलिस्ट वाला भी. एक थोड़ा सा वीडियो में और स्ट्रक्चर ऐड करने की कोशिश करूँगा मैं स्टोरी टेलिंग के हिसाब से कि आई गेस इफ़ यू गाइस हैव एनी आइडिया कि आपको इस तरीके से चाहिए हो तो जस्ट लेट मी नो. सो बेसिकली एक दिन का कुछ भी लेसन होगा दैट आई लर्नड दैट आई वुड बी शेयरिंग विद यू. एंड एक अकाउंटेबिलिटी चेकलिस्ट जिसके अंदर आई वुड बी checking out things, how much I achieved in the whole day, how I'm progressing as per my routine. मैं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाने का सोच रहा हूँ. Let's see how it goes. If you guys have any idea, comment those down. And yeah, see you in the next video. Bye bye.